Good morning, children. Today we are going to start the new chapter, electrostatics. The first part of this chapter is electric charges and electric field. In this chapter, we will deal with the electric charges and the field produced by these electric charges. Now, what do you mean by electrostatics first? Electrostatics. Electrostatics. It is made up from two words. Electrostatics. Electro represents any charge. Statics means charge at rest. So in this whole chapter, we are going to deal with the properties of the charges at rest. That means in the whole chapter, the charges will be at rest. We are going to deal with the properties of those. That is, when the charges will be at rest, we are going to deal with the properties like force, field, potential and energy. This is called as electrostatics. So what is electrostatic? Branch of physics in which we are studying the forces, electric fields, potential, energy due to the electric charges at rest. Here in the whole chapter we will consider the electric charges to be assumed to be at rest. This is known as electrostatics and also known as another name is static electricity. Now some examples you must have seen. When you change the clothes in the dark, you must have seen the seen the crackling sound. Yes. When we feel a mild shock, when sometime we touch a metallic door of a bus or a car. Similarly, we feel some mild shock when we walk on a woolen carpet touching a metallic object or a metallic lobe. So this is the daily life examples which you can see in the electrostatics parts. Now some applications are there. We can use them in the capacitors, condensers. We can use them in the photocopies. Now the next is इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? अब देखो, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. नाउ अब वो कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या. ये एक करेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, जो कि कारण बनती है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का. मीन्स दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं या फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस हैं. ये किस पे डिपेंड करता है, उसके चार्जेस पे. अगर सेम चार्जेस होंगे तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस होंगे, अगर ऑपोजिट चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे. तो मीन्स सिर्फ आपको चार्जेस ही ये बताएंगे. चार्जेस गिव राइज टू दोज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. पोलैरिटी ऑफ दीज चार्जेस विल गिव राइज टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. So what is electrical charge? It is a characteristic of a body or object that causes it to experience an electrical force near other body or object. When two substances are rubbed together, they exchange the charges, and this is called as producing of electric charge on a substance or called electrification. जब आप दो चार्जेस को रब करते हो, जब दो बॉडीज़ को आप रब करते हो तो उनमें क्या आता है, चार्ज आता है. यू मस्ट हैव सीन, अगर आपके ड्राई हेयर आप उन पर स्केल रब करते हो, स्केल को अगर आप छोटे छोटे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आते हो तो बिट्स ऑफ पेपर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. यस और नो, आपने छोटे होते बहुत सी ये वाली एक्टिविटी बहुत बार की होगी. सो व्हाट इज दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज. आप चार्ज को मेजर कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो. सो दैट इज इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. सो एज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मेजर्ड, सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, जब चार्जेस सिर्फ रेस्ट पे, चार्जेस चलते भी हैं बट हेयर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द चार्जेस ओनली एट रेस्ट. सो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक चार्जेस. जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो हम क्या कहेंगे, दे आर द स्टैटिक चार्जेस. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. यूनिट्स आर कूलम. चार्जेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम में, रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल C. नाउ two kinds of charges, you are very much aware about it, positive charge and negative charge. Benjamin Franklin did this experiment first. उसने क्या किया था, ग्लास रोड को एम्बर के साथ रब किया था, एम्बर के मटेरियल के साथ. जैसे उसने रब किया था, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था और एम्बर पर नेगेटिव चार्ज आ गया था. सो पोलैरिटी ऑफ चार्ज आपको ये बताती है कि एक पे प्लस है या माइनस है, उसके नेचर के बारे में बताती है. व्हाट आर द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता. ना सी द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द चार्जेस. आपने क्या किया, आपने एक रबर रोड को फर के साथ रब किया.
ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? अगर आप रबड़ को फर के साथ रब करते हो, बेसिकली जब आप रबड़ को ऐसे फर के साथ रब कर रहे हो ना, तो एक बॉडी क्या कर रही है, चार्ज को लूज़ कर रही है, और दूसरी बॉडी क्या कर रही है, गेन कर रही है। अगर मान लो मैं पेन को अपने थंब के साथ रब कर रही हूँ और पेन क्या कर रहा है, चार्ज को लूज़ कर रहा है, तो पेन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये गेन कर रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मेरे थंब के ऊपर और ये मेरा पेन है, ठीक है। सपोज इसके पास 5 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव थे, इसके पास 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, न्यूट्रल होती हैं दोनों बॉडीज़। जैसे आपने पेन को थंब के साथ रब किया, क्या हुआ, इसने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब जब इसने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो सपोज इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ कितना रह गया, 3। तो टोटल चार्ज कितना रह गया, 5 - 3 2 कूलम। ओके, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना इसके ऊपर, +2 कूलम आएगा ना। पॉजिटिव चार्ज इज मोर, तो इट गेन्स द पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो यहाँ पर क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज -2 कूलम चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर कितना आया, पॉजिटिव, +2 कूलम, और इस पर -2 कूलम। सो जो चार्ज को लूज़ करता है, द ऑब्जेक्ट विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन नोन आई हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड वन हु गेन्स द इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या किया, एक रबड़ को आपने फर के साथ रब किया। जैसे आप रबड़ को फर के साथ रब करते हो, रबड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको आपने हैंग कर दिया एक थ्रेड से। सिमिलरली आपने उसी तरह से चार्ज की हुई एक रबड़ रोड को फिर से इसके पास लेके आओगे, क्या करेंगे आपस में, दे विल रिपेल। अब नाउ ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करो। जब आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हो, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ग्लास रोड के ऊपर आपने ग्लास रोड को हैंग किया, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को आपने हैंग किया। सिमिलरली आप एक और पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को इसके पास लेके आओगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब आप एक ब्लू मीन्स एक रबड़ की और एक ग्लास के रोड को पास लेके आओ, तो व्हाट विल हैपन, it will attract. So this shows the charges give rise to the properties of attractions and repulsion. Thank you.